Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the detailed structure of bone. Let's start. Now let us start with bone first of all. तो सबसे पहले हम bone को start करेंगे. Bone को define करते हैं first of all. So bone is the hardest connective tissue that forms endoskeleton in the vertebrates especially. Dear students, connective tissue आपने पढ़ा हुआ है. Animals के अंदर 4 basic tissues होते हैं जिससे मिलकर तमाम animals की bodies बनती हैं. The muscular tissue and nervous tissue and the connective tissue and the epithelial tissue. और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फर्दर आगे इट इज कंपोज्ड ऑफ इसकी जो टाइप्स हैं मतलब कि इट इज ब्लड इट हैज गॉट ब्लड एंड बोन एंड कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यू. तो उसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं बोन को. सो अमंग द कनेक्टिव टिश्यू इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स. क्लियर. सो चूंकि एंडोस्केलेटन आमतौर पर होता ही vertebrates में usually it is present in the vertebrates, so that is why it is present in the vertebrates. और अगर इसकी composition के एतबार से देखें bone की, so it consists of bone tissue, it consists of cartilage, it consists of fibrous connective tissue, and it consists of blood vessels, along with nerve tissue. It also has some nerves in the bone, and the bone cells. It consists of some bone cells, and the bone cells include, which will be discussed later, inshallah, the osteoblasts, osteoclasts, and the osteocytes, and the osteoprogenitor cells. So these are the types of bone cells which are present in the bones. Clear? And along with these bone cells, there is also deposition of minerals. So the major mineral present in our bone is calcium phosphate. Clear? So it is important. So this is the mineral which is deposited in our bones especially. Clear? And let's here have some view of its parts. So this is a long bone. अच्छा dear students, इसको डिस्कस करने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन और आपने सिलेबस में भी पढ़ा क्योंकि बोन का टॉपिक चल रहा है. तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन डेफिनेटली smallest human bone is stapes, which is present in the middle ear, and the longest human bone, इंसान में सबसे लंबी हड्डी जी डियर स्टूडेंट्स कौन सी होती है? दैट इज फीमर, और विच इज कॉल्ड एज थाई बोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थाई बोन. क्लियर. और नाउ कम टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ द बोन. ये हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ये उनके हम उसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं. तो ये एंड्स हैं, ये 2 एंड्स, और दरमियान में शाफ्ट. ठीक है. जो एंड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं थोड़े से. ठीक है. लाइक दिस एंड लाइक दिस, दे आर ब्रॉड. और दरमियान में जो पोर्शन होता है, जो मिडल पोर्शन होता है, ये थोड़ा इलोंगेटेड है अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, और मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उस एंड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा नैरो होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, and in the terminal portion again the epiphysis. So epiphysis, it is the terminal broad parts of long bones. जो broad terminal मतलब ends के ऊपर, this terminal, upper terminal and the lower terminal, तो जो broad ends जो मौजूद हैं, they are called as the epiphysis. Clear? और यहाँ से लेकर 2 epiphysis के दरमियान, यानी इन terminals के दरमियान जो bone का जो portion होता है, that is called as diaphysis, which is also called as shaft. So the shaft, which is the middle part of the bone along the length of the bone, जो middle part होता है between the 2 epiphyses, this is called as the diaphysis. Clear? तो ये important है MCQs के एतबार से. What is the epiphysis and what is diaphysis?
अब इतने सी बोन को कट करके थोड़ा सा इसको बड़ा सा करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं. सो लेट अस हैव अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ दिस बोन. तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, बोन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है. दिस वन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड. तो ये बाहर एक आउटर कवरिंग है, दिस वन, जो आपको यहाँ पर येलोइश यानी कलर में नजर आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. पेरी मींस अराउंड, ओस्टियम मींस बोन. तो पूरी बोन के गिर्द चारों तरफ, दिस इज अ बोन ऑल अराउंड द बोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दिस देयर इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये ही वो लेयर है जो कि सेंसिटिव होती है आमतौर पर से प्रेशर से, और इसके अंदर वो जो पेन से सेंसिटिव, यही वो पोर्शन होता है. सो इन दिस लेयर द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. उसके नीचे देखेंगे तो बाकी इस पेरिओस्टियम के नीचे जो कुछ भी पड़ा हुआ है, ये बाहर समझे कि बोन का कवर है, ये सेंसरी कवर है. उसके नीचे असल में बोन है. तो बोन कहलाती है, इसके नीचे वाला पोर्शन कहलाता है एंडोस्टियम. इट इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम. एंड मींस इनसाइड. सो इनसाइड द पेरिओस्टियम. So the inner region below the periosteum is called endosteum. It is further composed of, इसके दो parts होते हैं. The peripheral मतलब बाहर की तरफ, compact bone, and inner bone mass called the spongy bone. जो अंदर वाली साइड पे जो bone mass actual, वो कहलाता है spongy bone. Clear? So बाहर periosteum, उसके अंदर जो हड्डी मौजूद है वो असल में वही हड्डी है. ये उसके बाहर एक कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, सेंसरी लेयर है. सो ये बाहर उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम. उसकी दो लेयर्स या दो पार्ट्स, जो पेरिफेरल द कॉम्पैक्ट बोन, ये रही कॉम्पैक्ट बोन, और ये अंदर वाली साइड पे यहां से थोड़ा सा काट के देखा है, दैट इज द स्पॉन्जी बोन. तो आइए अब कंपेयर करते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले कॉम्पैक्ट बोन, बाहर से हम शुरू हुए थे, तो बाहर से ही पहले आउटर साइड पे मूव करते हैं. एंडोस्टियम की जो पेरिफेरल लेयर है, so it is the outer hard layer of endosteum or peripheral layer. नीचे mentioned है, it is peripheral. Peripheral का मतलब होता है away from the center. Center से हटके जो बोन का हिस्सा वो कहलाता है peripheral. Clear? So the peripheral layer, the outer hard, it is very hard, it is dense and a layer of the endosteum. It provides, इसका function क्या है? It provides attachment to the muscles. मतलब ओरिजिन और इंसर्शन, जो मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन वो आउटर पार्ट पे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स. क्लियर? एंड आल्सो टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, एंड टेक्स पार्ट इन जॉइंट फॉर्मेशन. जो इसके एंड्स होते हैं, ये एपिफेजियल जो पोर्शन होता है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स एज वेल. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. काफी हार्ड है. असल में जो स्ट्रेंथ होती है बोन की, जो हार्डनेस की हम बात करते हैं, वो इस कॉम्पैक्ट बोन की वजह से ही होती है. बहुत टाइटली डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद है. अब आते हैं इसके अंदर वाले साइड पे. ये देखिए आपको कितनी एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं थोड़ी सी, ठीक है, और रेड रेड हिस्सा नजर आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन. दिस इज द स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्ज देखिए घर में बर्तन धोने वाली, डिश वॉशर. सो उसमें वो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं. उसी तरह से जैसे वो नरम होती है, इसी तरह से ये अंदर वाली जो लेयर है इस बोन की, जो अंदर या इनर लेयर, दैट इज सॉफ्ट. ठीक है, इट हैज एयर स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से सॉफ्ट है, ये ज्यादा डेंस नहीं है. क्लियर? सो द इनर स्पॉन्जी लेयर ऑफ द एंडोस्टियम इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन. द हैव द बोन मैरो. इसके अंदर क्या मौजूद है? इसी के अंदर मौजूद है ये बोन मैरो. ये रेड रेड आपको जो नजर आ रहा है ना इसमें, सो ये रेड बोन मैरो है. दिस इज रेड बोन मैरो. एंड ब्लड वेसल्स, इसी के अंदर ये देखिए पेनिट्रेटेड हैं. दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन हेमेटोपोइसिस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पॉन्जी बोन है, इसका जो मेजर फंक्शन है, दैट इज इट एज इट कंसिस्ट ऑफ द बोन मैरो. सो बोन मैरो होने के नाते इसका जो असल मकसद है, that is hematopoiesis. Hematopoiesis means the formation of blood cells. तो जितने भी blood cells हैं, most of the time, most of the blood cells, they are formed inside this, inside the bones or within the bone marrow. क्योंकि bone marrow के अंदर होते हैं hematopoietic stem cells, जो कि आगे differentiate होकर के बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के हमारे blood cells. Clear? सो उसके प्रोसेस को, ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस. हीम मींस ब्लड. क्लियर? पोइसिस. सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स.
चलें अब अंदर आए तो देखें ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं अंदर की तरफ जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी लेके आएंगे क्योंकि ये टिश्यू है और यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाएंगे, यहाँ पर ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट है उसको जो है वो देखा जाएगा, जो यहाँ पर नए बन रहे हैं वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे। यहाँ पर ये वाला रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेड बोन मैरो। ये ऊपर वाला ये स्पॉन्जी जो ब्रॉड एंड यानी एपिफाजियल एंड पे मौजूद है, इस जगह पे जो बोन मैरो मौजूद है यूजुअली इट इज द रेड मैरो, रेड मैरो भी कहते हैं इसको या रेड बोन मैरो भी कहते हैं। सो रेड बोन मैरो इट इज फाउंड इन स्पेसिस ऑफ स्पॉन्जी बोन, ये देखें स्पेसिस के अंदर मौजूद है, यू कैन लुक इट वेरी वेल। सो दे एंड दिस काइंड ऑफ बोन मैरो इज एक्टिव फॉर हेमाटोपोइसिस, यही वो बोन मैरो है जो कि हेमाटोपोइसिस में हिस्सा लेगी, मतलब कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। और दूसरे यहां पर देखें ये आपको येलो कलर की जो नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज येलो मैरो और येलो बोन मैरो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि रेड मैरो एक्टिव है, येलो मैरो ये इनएक्टिव होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तमाम बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स, वो सारे एक्टिव होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल्स, लेकिन उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जैसे वो खाना शुरू होता है अपने बिहाफ के ऊपर और फिर उसमें चर्बी भी आ जाती है, मतलब कि इन द डाइट द फैट्स आर इंक्लूडेड, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं ये जो इस बोन मैरो के ऊपर जो है उसके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। और ये फैट्स के ऊपर चढ़ जाने की वजह से ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द फैट्स और द लिपिड्स इट बिकम्स इनएक्टिव। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज येलो मैरो। येलो मैरो इसलिए करेंगे बिकॉज इसका कलर येलो है, इसको रेड मैरो इसलिए करें बिकॉज इट्स कलर इज रेड। सो हम इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में भी मार्क कर सकते हैं, इट इज रेड इन कलर while the yellow marrow it is yellow in color। clear? So yellow marrow कहां पर मिल रही है, ये देखिए यहां से नीचे वो shaft स्टार्ट हो रही है, shaft, और जिसको हम diaphysis कह रहे हैं। So it is found in the shaft और diaphysis in the central cavity, दरमियान में cavity होती है, एक स्पेस होती है, it is also called as medullary cavity। तो इस सेंट्रल कैविटी के अंदर मौजूद है ये येलो मैरो, इट इज इनएक्टिव, याद रखिएगा इट इज इनएक्टिव ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। तो दो तरह की हमारे पास बोन मैरो है, येलो मैरो एंड रेड मैरो, बट द एक्टिव इज रेड मैरो। लेकिन ये स्टूडेंट्स जरूरत पड़ने पर इस येलो मैरो को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एक्टिव फॉर्म मींस रेड मैरो, जैसे कि इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स जहां पर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस सूरत में जो थोड़ा जल्दी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवानी होती है, तो दिस इज नॉट इनफ इन दैट वेरी केसेस टू फॉर द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस। तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है कि जो येलो मैरो है इसको कन्वर्ट करती है इनटू रेड मैरो और ये भी स्टार्ट कर देती है इरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, द बोन सेल्स, सो वी आर नाउ डिस्कसिंग the types of bone cells which the bones possess. So there are 4 different categories of cells which are involved in the formation of bone. So first one are the osteogenic cells, or they are also known as osteoprogenitor cells, or in simple, so these are the bone stem cells. Stem cells वो होते हैं जो जहां से बाकी सारे सेल्स डिफरेंशिएट होकर के बनते रहते हैं, ठीक है, लाइक इन ब्लड सेल्स हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स, जिनको प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, उससे बाकी सारे वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स एंड रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। इसी तरह से बोन्स के अंदर भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, उनको ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। और ये ऑस्टियोजेनिक सेल ये मोनोन्यूक्लिएटेड है और इट विल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें प्लीज, ठीक है, ऑस्टियोजेनिक सेल इट विल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप हो चुकी है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं दे फॉर्म द बोन मैट्रिक्स, एमसीक्यू के लिए इसको मार्क कर लीजिए। द सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स देयर आर द ऑस्टियोब्लास्ट। ये स्टूडेंट्स, चले इससे हटकर एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करता चलूं, शेयर करता चलूं, एकदम से माइंड में आ गई। बॉडी के अंदर हम एक मुख्तलिफ तरह से सेल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के बिहाफ के ऊपर और इसके बिहाफ के ऊपर हम सेल्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ब्लास्ट और एक साइट। So cells, they are either blast or sites। जिसके साथ ही ब्लास्ट लगता है दैट इज इमेच्योर
सेल, और जिसके साथ साइट लगेगा दैट इज अ मैच्योर सेल. Like erythroblast, it is an immature cell, and erythrocyte is a mature red blood cell. Clear? तो इसी तरह से जो osteoblast, osteo means bone, तो ये immature bone cells हैं और यही इन्वॉल्व होंगे आगे चल के बोन का मैट्रिक्स बनाने में. So they are mononucleated, that is the nucleus. That is the nucleus. So they are mononucleated cells. They produce matrix. They produce the matrix mainly composed of collagen fibers. ज्यादातर ये डिपॉजिट करवाते हैं कोलेजन फाइबर्स को, और कोलेजन फाइबर्स खास तौर पर जो टाइप 1 कोलेजन है उसको ये जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसमें पैक करेंगे. दे आर नोन एज द बोन फॉर्मिंग सेल्स. एमसीक्यू. दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट. इंपॉर्टेंट चीज अब ये, दे सिंथेसाइज बनाते हैं एंड सिक्रीट रिलीज करते हैं अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस. अनमिनरलाइज्ड का मतलब जिसमें अभी कैल्शियम और फॉस्फेट ऐड नहीं हुई, ये सिंथेसाइज करते हैं और सेक्रेट करते हैं. क्लियर? एंड दे आर आल्सो नोन एज इमेच्योर बोन सेल्स. उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये अपने इर्द गिर्द जो है वो मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है. जब ये मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, so now it will be called as osteocyte. So this osteoblast will convert into osteocyte. So osteocytes, the entrapped osteoblasts in bone matrix. ऐसे osteoblast जो bone matrix में ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं. किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जैसे ये बनते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस के इर्द गिर्द in the periphery of these branches they start secreting the minerals, मतलब के calcium and phosphates and other minerals, especially the calcium and phosphate. जब ये अपने इर्द गिर्द इन मिनरल्स को फंसा लेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो खुद फंस जाएंगे. अब ये यहाँ से निकल नहीं सकते. तो ये entrapped osteoblast in the bone matrix is called as osteocyte. Clear? And इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें, इनके फंक्शंस के एतबार से देखें. So they maintain the bone tissue. बोन टिश्यू को मेंटेन करवाते हैं. दे रेगुलेट मिनरल होमोस्टेसिस. हड्डियों में कितनी बोन चाहिए, कितनी कैल्शियम चाहिए, कितनी फॉस्फेट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कितनी चाहिए, वो सारा इनका रेगुलेशन इनके हाथ में है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर बोन सेल्स. मैच्योर बोन सेल्स. क्लियर? क्योंकि इसके साथ वर्ड क्या लगे, साइट. एंड दे जनरेट मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स. तो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और बाकी जो मिनरल्स होते हैं इसमें वो मौजूद हैं, बट प्राइमरली द कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सो दे जनरेट मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स. इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर रहे हैं. ऑस्टियोब्लास्ट दे जनरेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, while the osteocytes they generate the mineralized matrix or the ground substance. They have many extensions. आप देख सकते हैं ये बहुत सारी एक्सटेंशन है इसकी, इधर 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 उधर, इन ऑल डायरेक्शंस. और इसका मकसद कि इसके आसपास वाले जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं या जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सके. सो दीज आर फॉर द कम्युनिकेशन. ये जो एक्सटेंशंस हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस, दे आर फॉर कम्युनिकेशन. And another function of the osteocytes is they maintain bone and calcium. ये हमारी हड्डियों को बनाए रखती है, उसको मेंटेन करती है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मैस को, और साथ में कैल्शियम को. क्लियर? तो ब्लड के अंदर और के जो इस बोन के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करती है. They regulate bones response to stress and mechanical load. ज्यादा वजन उठाने पर हड्डियों में दर्द होना या स्ट्रेस की कंडीशन में पेन होना हड्डियों के अंदर, सो दैट इज ड्यू टू दिस ऑस्टियोसाइट्स. ये इनकी रेगुलेशन करवाती हैं. दे रेगुलेट कैल्शियम रिलीज. ये इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें एमसीक्यू के लिए. दे रेगुलेट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन्स टू द ब्लड. जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल करेगा बिलो नॉर्मल जब फॉल करेगा, तो ऐसी कंडीशन में रिलीज होगा पैराथॉर्मोन. यू नो, सो पैराथॉर्मोन क्या करेगा कि इन हड्डियों में से कैल्शियम को निकलवाएगा फ्रॉम द, इस सारे प्रोसेस में ऑस्टियोसाइट्स को हेल्प कर रहे होंगे. तो निकाल के हड्डियों से जो इसकी फैक्ट्री थी जहाँ पर डिपॉजिट करवाई गई थी कैल्शियम, वहाँ से निकलवा के और वो बोन ब्लड में शामिल की जाएगी, ताकि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है फॉर स्पेशली फॉर मसल कंट्रैक्शन, वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाए. सो ये इसकी एक्सटेंशंस, these are known as extensions, या इनको प्रोसेसेस भी कहते हैं. They are also called processes, and this is the nucleus, and these are the minerals जो कि यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं.
ये इसको ट्रैप कर देंगे अब, ठीक है। और नाउ द osteoclast, so they are large in size and they are multinucleated. As you can see, these are nuclei, clear? So they are large in size as compared to them, and they're multinucleated. इनका फंक्शन रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, जिसको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन, वो कैसे करवाई जाती है? बोन टिश्यू की रिजॉर्प्शन बाय रिमूविंग द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, उसको रिमूव करेंगे मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स को, एंड ब्रेकिंग अप द ऑर्गेनिक बोन। याद है आपको रिपेयर ऑफ बोन, उसमें जब वो बोनी कैलस बन जाती है तो उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाता है, वो बोनी मटेरियल, तो उसको अलाइन करने के लिए, मतलब कि उसको बिल्कुल बिल्कुल जैसे नई थी, उसको एक्स्ट्रा मटेरियल को तोड़ने के लिए वहां पर ऑस्टियोक्लास्ट को पहुंचाया जाता है। और इसमें जो तोड़ने का प्रोसेस है उस ऑर्गेनिक बोन को, जो एक्स्ट्रा होती है, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल जो लग जाता है, उसे कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। मिक्स डिसॉल्व हो जाना या उसको खत्म कर देना, सो दैट इज रिजॉर्प्शन। द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, दे आर आल्सो नोन एज बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, एंड द मैक्रोफेजेस इन देयर फंक्शन। मैक्रोफेजेस स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने पढ़ा था। मैक्रोफेज जब मोनोसाइट्स 10 से 20 घंटे रहने के बाद, ब्लड में रहने के बाद वो टिश्यूज में चले जाते हैं, वहां पर दे कोइल्स और दे फ्यूज टू फॉर्म लार्ज सेल्स विच आर कॉल्ड एज द मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? वो बड़े पार्टिकल्स को, दे फैगोसाइटोस द लार्ज पार्टिकल्स, उन लार्ज पार्टिकल्स को खा जाते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस करते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स वो स्मॉल पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसी तरह से इनका जो फंक्शन है, डियर स्टूडेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, rather we are discussing the function. In functional ability or in the functional capacity, the macrophages of the white blood cells, they resemble these osteoclasts in function, because these bone cells are also involved in the phagocytic activity. Clear? तो इनकी phagocytic activity की वजह से, मतलब कि जो एक्स्ट्रा बोन सेल्स उनको बॉडी से रिमूव कर देना और डिसॉल्व कर देना, सो दैट इज देयर फंक्शन। मोर इंपॉर्टेंट, दे आर, यानी कि जो मैक्रोफेजेस हैं, दे आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ग्रोथ। जब बच्चा शुरू में बनता है तो आपको पता है उसमें सॉफ्ट बोन्स बनते हैं, जिनको कार्टिलेजेस कहा जाता है, और फिर उन कार्टिलेजेस की जगह पे आहिस्ता आहिस्ता, बच्चा भी माँ के पेट में ही है, इनिशियली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट बोन जिसको कार्टिलेज कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वहां से उस कार्टिलेज को रिमूव करते जाते हैं और वहां पर बोन सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड द ऑस्टियोसाइट्स एंड द कोलेजन फाइबर्स, दे अलोंग विद ईच अदर दे फॉर्म द स्केलेटन एंड दे डिपॉजिट। एक तो स्टूडेंट्स ग्रोथ के वजह से, दूसरा रिपेयर ऑफ बोन। तो रिपेयर ऑफ बोन में भी इन ऑस्टियोक्लास्ट का अच्छा खासा रोल है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट द एक्स्ट्रा मटेरियल, जो जब हड्डी जुड़ती है तो बाहर जो एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाता है उसको खत्म करना, यानी कि रीमॉडलिंग, जो चौथा स्टेप है, वो इससे ऑस्टियोक्लास्ट से स्पेशली रिलेटेड है। एंड हियर इज द डायग्राम ऑफ दिस मैक्रोफेजेस functional, having the macrophages functional capacity, that is the osteoclast. And one more thing, that the osteoclasts, they deposit calcium and phosphate into the blood, ये खून के अंदर शामिल करते हैं जरूरत पड़ने पर, not always and not unnecessarily, but upon the needs of the body.